রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্লেয়ার। গত কয়েকদিন আগে এই সেন্টারে আসার সুযোগ হয়েছে এখানকারই একজন হয়ে। দুদিন পাঠ শুনেছি এখানে। আজকে আমাকে এখানে পাঠের জন্য বসতে হয়েছে। পাঠের বিষয় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত। একটি ইউনিক বুক, মানে ইউনিক বই, যার বিষয়বস্তু ভগবান, যিনি রাম রূপে, কৃষ্ণ রূপে, বুদ্ধ রূপে, যীশুখ্রিস্ট রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তিনি এবার রামকৃষ্ণ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তো তার রেখে যাওয়া কথাগুলো তারই গৃহী শিষ্য মাস্টারমশায় বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখে রেখেছিলেন ডায়েরির আকারে। যতদূর মনে পড়ছে তিনি ইংরেজিতে এই কথোপকথনগুলো লিখতে শুরু করেছিলেন এবং তা পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হয়। এত বেশি চাহিদা হয় যেখানে গিরিশবাবু, শ্রীরামকৃষ্ণ আরেক গৃহী ভক্ত, তিনি মাস্টারমশাইকে লিখিত অনুরোধ করলেন, আপনি যদি এগুলো লিখতে থাকেন বাংলায়, তাহলে বহু ভক্ত এই কথাগুলি পড়ে তৃপ্ত হবে, আনন্দিত হবে। তো তিনি সেইভাবেই লিখতে শুরু করলেন এবং দেখাও গেল মানুষের প্রাণে বড় শান্তি দিচ্ছে, বড় আনন্দ দিচ্ছে। তো বইটি একেবারে যেন ছবির আকারে, ছবিতে যেমন দেখা যায় সেই রকমভাবেই এই বইটিও। তা বইটির বেশ কিছু সংস্করণ বেরিয়েছে। আমরা যখন যুবক তখন এটি 5টা পার্টে বের হতো। বর্তমানে এটির 2টি সংস্করণে বেরিয়েছে, অখণ্ড সংস্করণে বেরিয়েছে এবং ছোট ছোট সংস্করণেও বেরোচ্ছে। যত পড়া যায় ততই মাস্টারমশাইয়ের এই যে অপূর্ব লেখা, তার স্বাদ মানুষ পেতে পারে। এই বই জিস্ট, গীতা, উপনিষদ, যাবতীয় শাস্ত্রের সব কিছু এর মধ্যে পাওয়া যায়। তা মাস্টারমশাই তিনি সংসারে মানুষ, তিনি সংসারে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। কোনো একদিন এত বেশি সংসারের আঘাত পেয়েছিলেন, তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। তারই এক ভগ্নিপতি বরাহনগরে থাকেন বা থাকতেন, ঈশানচন্দ্র, তার গৃহে এসেছিলেন এবং পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঠাকুরকে দেখলেন, মুগ্ধ হলেন। তার কথোপকথনগুলো তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, আমরা একটু পড়ি, তাহলে আমরাও সেগুলো বুঝতে পারব। এই বইয়ের স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে তিনি এই মাস্টারমশাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছু ইংরেজিতে লিখেছেন চিঠিগুলো, সেটা উনি এদেশে নয়, আমেরিকা থেকেও
লিখেছিলেন। তিনি লিখছেন, স্বামী বিবেকানন্দ টু এম অর্থাৎ মাস্টার, থ্যাংকস ল্যাক্স মাস্টার, 1 lakh মাস্টার, ইউ হ্যাভ হিট Ramakrishna in the right point. Few, alas, few understand him. আরেকটি লিখছেন 7 February 1889। এটা তো দেখছি আটপুর লেখা আছে। My heart lives in joy, and it is a wonder that I do not go mad when I find anybody thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to sour peace on earth hereafter. Artpur is a village in the high Hooghly district, the birthplace of Premananda. The Swamiji and many of his fellow disciples were at this time staying as guests at the house of Swami Premananda. আমরা একটু লেখায় আসি, পরে আবার কখনো এখানে আসব। আজ রবিবার, ভক্তদের অবসর হয়েছে, তাই তাহারা দলে দলে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে আসিতেছে। 1882 আই থিঙ্ক। কখন? যখন भगवान श्री राम कृष्ण उसके साधना शेष किया है और विराम दे रहा है। उसका साधना दक्षिणेश्वर में ही हुआ था। दक्षिणेश्वर में उनका साधन क्या किया है? उनका साधन काली माँ के दर्शन किया है। उनका साधन तोतापुरी के पास गए थे, वहाँ वेदांत साधन किया था और साधन किया है शाक्त काली साधना किया है। शांत दांत मधुर जो भाव है सबको ही कंप्लीट किया है। उन्होंने राधा माई का दर्शन किया है, सीता माई का दर्शन किया है, राम जी कृष्ण जी सबको ही साधन किया एवं साधन के अंत देखा है कि सभी देवता सभी देवी उसके अंदर में घुस गए, मर्ज विथ हिम। तो ये भी देखा है कि जैसा क्राइस्ट उनका भी दर्शन उसके मिला और उसका अंदर में ही उसका शरीर में वो घुस गए और मर्ज किया है। उसका साधन यही है कि मोहम्मद की वो दर्शन किया है। सबके साधन के बाद तिनी वो कौन साधना किया है? श्री माँ शारदा देवी के पूजा किया था। फलवारनी काली पूजा दिन में 1872 आई थिंक, उसी दिन में साधन उसकी पूजा किया है। उसके पूजा अंते उसके जपमाला और सब साधन के फल होली मादर के दे दिया। मादर उसके बाद डिवाइन देवी शारदा बन गए। तो ये आप आए कि 12 साल साधन किया था। उसके बाद माँ के पास वो प्रार्थना किया था। कहाँ पर? कुठी मथुर बाबू जहाँ रहते थे उसके छाद में, उसके अबव अपस्टेयर्स के बाद छाद में गए थे, रूफ में वो गा के प्रार्थना किया है। वहाँ संसारी लोग आते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। मेरा बहुत कष्ट होता है और मुझे बहुत
अच्छा नहीं लगता है, दिमाग एकदम खुश नहीं होता है, तो तुम अच्छा वक्त लेके आओ। इसके बाद भी शावी भक्त्य, युवक भक्तों, पुरुष भक्तों, मेल एंड फीमेल डिवोटीज आ रहा है। नरेन, राखाल, तारक, शरद, शशि, ये सब लड़का भी जैसे आए, और ये मास्टरमशाय महेंद्रनाथ गुप्ता भी आए, बलराम बसु आए, गिरीश बाबू, गिरीश चंद्र घोष आए, और सब भक्त जो आए बाद में आए थे। तो उसके हर रविवार भी ज़्यादा भीड़ होता था, तो उस टाइम में ठाकुर भी मिलता है। आप जब आप दक्षिणेश्वर में जाएंगे तो क्या आपके चौक में आएंगे। मैं भी गए थे इधर आने के पहले ही। मैं एक बार जब कलकत्ता आते थे, एक बार मैं कोशिश करते थे ये माँ के पास जाना। माँ के एक बार दर्शन करने के बाद बहुत शांति मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो जब तक मेरा फुर्सत है, जब तक मेरा टिकट थे ऑन 27 मॉर्निंग में मैं 8:30 बजे बाहर हुआ था, और एयरपोर्ट जाने के पहले मैं माता जी का मंदिर गए थे, और राधा कांत मंदिर भी दर्शन किया, शिव जी का मंदिर दर्शन किया। ठाकुर जी का जो गौर है वह अभी अंदर नहीं जाना सकते आप, थोड़ा अभी वो बंद हो गए, बाहर से देख सकते लेकिन अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद माँ जी का ये छोटा बालाजी नावाबाद का घर है, वो भी दर्शन किया। अभी वहाँ एक स्टैचू मूर्ति है माँ जी का, बहुत अच्छा लगता है, जैसे माँ जी वो घर में रहती है वैसे। यहाँ लिखता एखाने की बोलছে সকলেরই অবারিত দ্বার, सब कोई जा सकते हैं। যিনি আসিতেছেন ঠাকুর তাহারই সহিত কথা কহিতেছেন। यह ठाकुर की भाव थोड़ा बदल गए। स्वामी जी जे लिखा है ना सखार प्रति कविता में, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार ছাড়ি কথা খুঁজিছে ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे যেই জন সেই विषय ईश्वर। स्वामी जी के ठाकुर किया ना इसी घर में, जहाँ वैष्णव धर्मों के लिए बातचीत होता था। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव पूजन, जीव नहीं शिव। ऐसा ही ठाकुर सब आदमी को ईश्वर देख रहे थे, पुरुष को देवता और नारी को देवी रूप से देखता था। तो যিনি আসিতেছেন ঠাকুর তাহারই সহিত কথা কইতেছেন। সাধু, পরমহংস, हिंदू, क्रिश्चियन, ब्रह्मज्ञानी, शाक्त, वैष्णव, पुरुष, स्त्रीलोक सकलेई आसितेছেন। वो लोग आते थे, वो लोग क्या देख रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी अच्छा से साधु यहाँ बैठे, वो क्या देख रहे हैं, ये परमहंस बैठे हैं, जो जहाँ चाहते थे वो उसके पास ऐसा ही दर्शन दे रहा है। जो हिंदू वो हिंदू भाव मिलता है ठाकुर जी का, जो क्रिश्चियन और क्रिश्चियन भाव मिलते हैं, यो ब्रह्मज्ञानी, यो शाक्त, वैष्णव, पुरुष, स्त्रीलोक जो आती थी, तो क्या वो देख रहे कि ये पुरुष नहीं, ये स्त्रीलोक की है। कभी ठाकुर ऐसा भी कहते, कथा में तो ये मिलता है, वो बोलते ठाकुर ने कहती थी उसको, देखो मैं पुरुष नहीं, देखो मुझे अच्छा से देखो, एक छोड़ा वाला दाढ़ी है नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा ही कहते थे। सकलेई आसितेছেন, सकलेई बैठते थे। हम लोग ठाकुर जी का गृह भक्त रामचंद्र दत्त वो लिखते हैं कि हम लोग कभी कभी सैटरडे संडे आ जाता है मॉर्निंग में, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 8 o'clock 9 o'clock, कभी कभी 12 o'clock 11-12 o'clock हम लोग उसी पास में रहती थी। उसके ऐसा लगता है कि उसका छोड़ने अच्छा नहीं लगता है, आउट थोड़ा बैठने ऐसा उसका
अंदर में कहते थे, धन्य रानी रासमणी। रानी रासमणी ये टेम्पल बनाया, ये ठाकुर जी के लिए बनाया। रानी रासमणी, ओह, इसके जो लाइव है, व्हाट ए पुअर लेडी। लेकिन वो पुअर, किंतु जिसके साथ शादी हुआ था वो जमींदार थे, रिच पर्सन थे। माड जो हाउस, वहीं पर रानी रासमणी पहले जन्म लिया है। लेकिन वो कोई जनरल वुमेन नहीं है। वो रानी अष्टसखी जो है, अष्टसखी एक सखी वही है, राधा के जो अष्टसखी थे। तुम्हारी स्वीकृति बोले सुंदर देवालय प्रतिष्ठित। व्हाट ए यूनिक बेंगली। আমার এই সচল প্রতিমা, এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতেছেন। सब लोग तुम्हारी स्वीकृति, जो तुम्हारा जो स्वीकृति है, इसीलिए तुम इस दिवालय बनाया, प्रतिष्ठा किया है। यह सचल प्रतिमा है, अचल नहीं, सचल। और ये जो महापुरुष, यस, ठाकुर तो महापुरुष ही है। हम तो उसके लाइफ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? उसके जे मदर है, वो तो देखा है ब्रॉड डे लाइट में। योगी जो शिव मंदिर कामारपुकुर में है, तीनों लेडी वहाँ खड़े थी, और वो लेडी देखा है कि ठाकुर जी के माँ चंद्रामणि देवी। क्या देखा है? आंखों आपन आँख से देखा है। ये शिव मंदिर ज्योतिर्मय हो गए, और एक लाइट शिव मंदिर, शिव जी का शरीर से फ्लैटली आ गए, उसके शरीर में अंदर में घुस गए। वो थोड़ा सेंसेस होकर उधर पड़ गए, और जब तक वो उठे, शी फील्स दैट वो जनना हो रहा है, ऐसा। महापुरुष के लोग के दर्शन और पूजा करते पाइते छे। हाँ, ये बात सही है। उसके ठाकुर जी के पिता भी दर्शन किया था। वो थोड़ा गया गए थे पिंडदान के लिए, स्पेशल पूजा होता था वहाँ पर, अभी भी हो रहा है। वो रात में दर्शन किया है भगवान श्याम सुंदर, विष्णु नवदुर्वादल श्याम विष्णु स्वप्न में आए। और क्या बताए ये देखो खुदीराम, मुझे याद है कि तुम्हारे पुत्र हो के जन्म लेना, तुम्हारा पुत्र हो के जन्म लेना चाहते हो। लेकिन गदाधर खुदीराम जोड़ हाथ के विथ फोल्डेड हैंड वो प्रेयर करते हैं, मैं गरीब हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, कैसे आपको देवता की कैसे पूजा करूँगा। तो देवता ये बताया, देखो खुदीराम, तुम जैसे पूजा करना, मैं ऐसे ही पूजा लूँगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। उसके बाद उसके सपन टूट गए, और ऐसा फील हो गए। जब तक कुछ दिन के बाद, थोड़ा दिन के बाद जब कामारपुकुर आए, उनकी पत्नी उनका दर्शन की बात किया है, उन्होंने बताए हैं, हम भी ये दर्शन किया है, ये कई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, कई महापुरुष हमारे घर में आ रहा है, तुम किसी को नहीं बताओ, तैयार हो। जैसे हमारे जन्म होता है, ये जन्म नहीं होता है, ये अलग। आज ठाकुर श्री राम कृष्ण कहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक बात सुना, ये बात
फॉरेन कंट्री के बात, कहाँ पर, न जर्मनी के बात। क्या सुना, वहाँ पर जो स्वामी जी है वो चाहते हैं एक मंदिर बनाना। ठीक है, मंदिर बनाना, बेलूर मठ परमिशन दे दिया, उसको तो बनाते हैं मंदिर, तो छवि बनाएंगे, रखेंगे पिक्चर। लेकिन एक महिला, एक औरत जो इंग्लैंड में रहती थी, वो एक सपन मिला। ठाकुर जी कहते हैं, अरे वो लोग देखो हमारे छवि वहाँ स्थापन करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम रुपया दो, तुम एक मूर्ति बना दो, बनाना पूरा खर्चा दो। तो वही लेडी, दैट लेडी फोन दैट स्वामी, जे मुझे पास ठाकुर जी कल सपन दिया है जे तुमको देना पड़े एक मूर्ति, स्टैचू मूर्ति तुम देना। मैं तो सुन के बहुत आश्चर्य हो गया है, लेकिन नहीं, ये ऐसा बात होता ही है। आज कितना दिन, तो ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था। कितना कितना आश्रम बनता है, और ये घटना भी हम लोग जानते हैं। एक दिन अचानक ठाकुर जी श्रीमा की नहबत में आए। ठाकुर जी देखा है जो उनकी पिक्चर, उनकी फ़ोटो माँ जी रख के हर रोज पूजा करता है, फूल देती थी। तो ठाकुर जी ने कहे, तुम इसी फोटो में फूल चढ़ाते हैं, वो फूल अभी कुछ है तो हमारे दो। माँ फूल का पैकेट उसके पास रखे, ठाकुर जी ने फूल लेके उसके हेड में, उसके हृदय में, उसके चरण में फूल छोके, फूल डाले, और माँ जी के बताए एक दिन आएगा जो घर घर में इसी फोटो में पूजा होंगे। ये ठाकुर जी ने खुद माँ जी के ये बात बताए। तो हम लोगों ऐसा देखता हो, आज कितना कितना आश्रम, मोर देन 300 सेंटर्स होल इंडिया, होल वर्ल्ड में हो गए और हो रहा है। इसके बाद और थोड़ा पढ़े 5 मिनट टाइम में, चाँदनी और दादर शिव मंदिर। कालीबाड़ीटी कोलकाता होते 2.5 क्रोश उत्तरे होइबे, ठीक गंगा के किनारे। हाँ, ये है रानी रासमणी चाहते थे कि काशी जाके अन्नपूर्णा एवं शिव जी के पूजा करेंगे षोडशोपचार के लिए बड़ा करके। माँ ने दर्शन दिया, नहीं उधर नहीं जाना पड़ेगा, तुम यहाँ गंगा के किनारे में एक मंदिर बनाओ, वहाँ मैं रहूँगा। तो ये शिव मंदिर ऐसा ही बनाया। ये भी बात सुने हम लोग, क्या सुने, बहुत दिन से उसी काली मूर्ति पैकेट में रहते थे, बॉक्स में। एक दिन माँ दर्शन दिया रानी को, तुम कितना दिन वहाँ में रहने देंगे, देखो ना कितना गर्म होता है। तो इट इज़ ट्रू दैट व्हेन द बॉक्स ओपन, everybody saw some sweating in the body of a stone मूर्ति, माँ की मूर्ति के में। कालीबाड़ीटी कोलकाता होते 2.5 क्रोश उत्तरे हुई, ठीक गंगार ऊपरे। कितना सुंदर गंगा बहती है और इतना सुंदर लिखा है। अभी कितना कितना लैंग्वेज में वही बाहर होते हैं। मुझे मालूम है तो इंडिया में कब सभी लैंग्वेज में इसी किताब बाहर हुआ था। एक इवेंट मुझे पास आते हैं, मैं जयराम बाटी में बहुत साल थे,
इन द ईयर 87 to 99। वहाँ फॉरेन का बहुत आदमी आते थे, अभी भी आ रहा है। तो एक जापानी फैमिली वहाँ आए। मैं उसके पूछे, आप कितना साल से इंडिया आ रहा है और व्हाट इज़ द इवेंट, व्हाई डिड यू कम टू इंडिया? तो दैट जेंटलमैन मुझे बताए, स्वामी जी आज से कभी कभी 30 साल पहले इंडिया में यहाँ आए। तो यही हुआ कि मैं एक बौद्ध मंदिर में गए थे, उनके प्रीस्ट मुझे पहचान है, मैं उसके इन्फॉर्म किया है, वो मुझे उसके घर में बुलाए। मैं गए थे उसके घर में, चेयर में बैठे तो टेबल में एक किताब देखा है, बहुत सारे किताब है, लेकिन वो किताब मुझे बहुत सारे अट्रैक्ट किया है। मैं उसके पूछा है क्या किताब, वो बताए गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। बोले क्या है? बोले प्लीज़ लिसन। वो पढ़ते थे और मुझे सेंसेशन होता है, होल बॉडी मुझे सेंसेशन होता है स्वामी जी। तो उसके बाद मैं ये किताब पढ़े और इंडिया में आके मैं, मेरा स्त्री और मेरा लड़की सब स्वामी भूतेशानंद जी के पास दीक्षा लिया। जब तक दीक्षा लिया तब तक इसी देश में आते हैं। यू सी कैसे कैसे इसका इम्पोर्टेंस लोगों के पास होता है। लोगों के पास चुंबक माफिक एक किताब आते हैं। तो इसके बाद क्या लिखा, शोपानेर पड़े चाँदनी, पूरा पिक्चर दे रहा है। সেখানে ঠাকুর বাড়ির চৌকিদারেরা থাকে, তাদের খাটিয়া, আম কাঠে সিন্দুক, একটি লোটা সেই চাঁদনিতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গা স্নান করতে আসেন, কেউ কেউ সেই চাঁদনিতে বসিয়া খোশ গল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু ফকির বৈষ্ণবী অতিথিশালায় প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তারাও কেউ কেউ ভোগের ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনিতে অপেক্ষা করেন। কখনো কখনো দেখা যায় গৈরিক বস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূল হস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনিটি দ্বাদশ শিব মন্দির মধ্যেও ঠিক মধ্যবর্তী। তার মধ্যে 6টি মন্দির, চাঁদনির ঠিক উত্তরে আর 6টি চাঁদনির ঠিক দক্ষিণে। নৌকা যাত্রীরা ওই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, ওই রাসমণির ঠাকুর বাড়ি। दो दिन 25th and 26th बेलूर मठ में यूथ कन्वेंशन हुआ था। वहाँ पर स्वामी जी का बहुत सारे आलोचना हुआ था। उसके बाद 29th and 30th 2 दिन भक्ति सम्मेलन थे, भाव प्रचार। इसी 2 दिन में ठाकुर के बहुत लेक्चर हुआ था। अब इसी लेक्चर इंटरनेट में ओपन करेंगे तो बटन ठीक से लेने के तो इसी लेक्चर आ जाएंगे। तो आज कथामृत और वचनामृत और गॉस्पेल इतना मानुष के पास तृप्ति, आनंद और पुनर्जीवन दे रहा है। मानुष ये किताब पढ़ के चेंज हो रहा है। कैसे चेंज होता है? स्वामी जी कहते हैं रिलीजियन इज रियलाइजेशन। स्वामी जी कहते हैं पशुत्य डेवलप यार पशुत्व तो मनुष्यत्व आएगा, मनुष्यत्व डेवलपमेंट करेगा तो देवत्व आएगा। इसी देवत्व के पास ले जाएंगे ये किताब। राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद once he said, ये किताब जो 12 साल पढ़ेंगे, कोई दिन के
विराम नहीं देकर उसके ब्रह्मज्ञान हो जाएगा। मैं इसी आशीर्वाद कर रहा हूँ, हो जाएगा। ये किताब बहुत अच्छा किताब है, इसमें बहुत मिलेगा, कितना कितना इंस्टेंस मिल जाएगा। एक इंस्टेंस तो मुझे याद आते हैं, अभी यहाँ पर आते हैं, कोई पेज में आएंगे। एक ब्रह्मचारी रास्ता में चलते थे और एक वुडकाटर उसी रास्ते में अचानक आ गए। वो साधु आदमी देख के प्रणाम निवेदन किया था। ब्रह्मचारी ने उसके आशीर्वाद किया है, क्या तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ दिन के बाद ये ब्रह्मचारी आशीर्वाद उसके फिर याद आ रहा है। वो उसके मालूम है आज थोड़ा एडवांस करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली वुड मिला। और कुछ दिन के बाद गए थे, वो चंदन वुड मिला उसका डीप फॉरेस्ट में। और ज़्यादा एक दिन गए थे, उसके क्या मिला? रूपा माइंस, गोल्ड माइंस सबके अंदर में है। अंदर में जितना जितना तुम जाओगे, भगवान के जितना जितना तुम प्रे करोगे, मेडिटेट करोगे, भगवान आपका सब कुछ देंगे, श्रद्धा देंगे, भक्ति देंगे। आपको जो आसुरिक भाव है उसके थोड़ा चेंज कर देंगे। दैवी गुण आपको देना है, दया, क्षमा, करुणा, भालोबासा, सब कुछ देंगे। आपको हाथ के पकड़ेंगे, आपके अंतर पूर्णता देने। तो आज ही इसी बात के साथ मुझे ये विराम दे रहा हूँ। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहम वै ईशावतरम परमेश्वरित्यम तंग रामकृष्णम शिरसानुमे। मैं कभी हिंदी ते ऐसा बात नहीं किया।